Everybody mark your attendance. Link will be, I think, not active right now, so I will announce, okay, in between the class. So last class हम लोग कहाँ थे? सर कैलकुलेशन कर रहे हाँ, we are. So what we have learned in that class? कौन बताएगा? लास्ट क्लास हम लोग क्या लर्न किए? सर पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, फिर टाइम पीरियड सर, How to फ्रीक्वेंसी। calculate, okay, from the reading of the CRO, okay. So we have seen that. Yes, sir. Measurement of amplitude, frequency, time period. So what we have seen that our CRO have some display area. In that whole display is divided into some small square or rectangular. Basically it is in the form of a square, so it's divided in so many squares, okay. So when the signal will come on the screen and we will mark the reference value, then we will we'll check now how many divisions is touching from the base, okay. Then number of division will be multiplied with the voltage per division knob, okay. जहाँ पे वो setting है उधर से हम multiply करेंगे, okay. So that will give you the value, ठीक है. So this was the screen that we have seen in the last class, okay. So on the screen any signal will come like that. Maybe यहाँ से start हो सकता है, okay. Maybe ऐसे start हो सकता है. You have to adjust through the knob. हम ऐसे बीच में लेके आ जाएंगे, okay. There is a knob जो हम इसको horizontally, vertically, है ना, move करके इसको reference में लेके आ सकते हैं, okay. ये reference line के cross लेकर आ सकते हैं और ये horizontally और vertically ये पूरा equal part में divide किया गया, okay. So this is called division 1, 2 और ये further division है ना, 10 भाग में बांटा गया इसको भी, ऐसे 0.1, 0.2 है, like that, okay. Suppose ये 1 है, ये 2 है, तो in between ये 0.1 होगा, 0.2 होगा, है ना, ऐसे करके accurate measurement के लिए this information we must have, okay. ठीक है. So this was the volt per division knobs, okay. ये for एक चैनल के लिए दूसरे चैनल के लिए, ऐसे हमारे पास दो चैनल्स में two signals can be seen together, okay. And then if you want to compare with the magnitude or with the time period, we can easily see and easily compare the two signals, okay. And this is the knob for the voltage per division. If you see your CRO, these knobs should be there, okay. Now this is CRO. Now a time we are having digital CRO, okay, or digital what we can say, obviously digital CRO. So they are all the auto tune. You don't have to do much over there. Just connect and press the auto button. Every parameter is going to be adjusted automatically, and it will show the correct result. Okay. But I think this is very this CRO, the analog CRO that we are seeing is very
I love to work on that. I don't want to work on the digital one because there are some, what we can say, there is so many fluctuation over there. So this will give you the better result for the low frequency range. If he, मतलब there is a frequency range, आप कहाँ तक measure कर सकते हो with the different CROs. Okay, according to your purchase, what you are purchasing. Okay, so you can see the signal frequency or signal magnitude also. Okay, so now this was the how we are going to calculate the peak to peak value and the period. Okay, how we are going to count the division actually. So this example is for the the calculating the period and calculating the magnitude of this any signal. Okay, once hello. Yes. So Yes, sir. actually I got a phone in between. Okay. So this is how we are going to adjust your signal, because if your CRO is not tuned, then you have to tune through the knobs. Okay, what we'll do, if you are calculating, bring this this कहीं से भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ पकड़ सकते हो, यहाँ पकड़ सकते हो, वन कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, या यहाँ पकड़ सकते हो. ओके, तो ये कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से होके यहाँ तक, राइट. तो आप ये एज से ये एज ऐसे मार्क कर सकते हो, ये टोटल कितना डिवीजन हो रहा है. ओके, और फॉर वोल्टेज मतलब फॉर एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आप कहीं से भी रेफरेंस लेके आप ले सकते. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. मिडिल में रखने का है, ऊपर नीचे आप जितना भी डिवीजन होगा ऊपर में भी सेम होगा और नीचे में भी सेम होगा, है ना. तो जहाँ पे भी आप मार्क कर रहे हो वो आप ये देखो कि पूरा परफेक्ट वो मिडिल में आना चाहिए. ओके, ठीक है. यहाँ से इसके बाद काउंट कर लेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज सम ऑफ पीपल हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लासेस, सो अगेन आई एम रिपीटिंग. ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके लास्ट क्लास में. सो काउंट कर लेंगे. तो अभी कितना डिवीजन है, 1 2 एंड 3, है ना टोटल. अगर ये यहाँ पे रहता तो, अगर सिग्नल ऐसा रहता, सपोज यहाँ से स्टार्ट होने का है और ये ऐसे ही मिडिल में आ जाता, तो अभी ये पूरा टच नहीं कर रहा है. एक तो हो गया एक डिवीजन, ये पूरा टच नहीं कर रहा है, ये मिडिल में है. तो कितना होगा, 1.5 लगभग. ओके, ये पूरा टच नहीं, मतलब 2 डिवीजन ये नहीं कंज्यूम कर रहा है. ओके, ठीक है. अभी सबको समझ में आ गया. जितना डिवीजन है उसके बाद वोल्टेज, ये एक डिवीजन कितना वोल्ट को बता रहा है वो आपको डिसाइड करेगा उसका नॉब. ओके, वो नॉब किधर पे है, वोल्टेज पर डिवीजन. जितना डिवीजन है वो नॉब जिस पे मार्किंग रहेगा आपको दिखेगा. ओके, तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल बात है. अगर 1 वोल्ट पे मार्क है, 1 वोल्ट पर डिवीजन, दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 डिवीजन आ रहा है तो 2 वोल्ट हो जाएगा. ओके, एज सिंपल एज दैट. सो हियर द एग्जांपल इज टेकन फॉर द, आपका जो वोल्ट डिवीजन पर डिवीजन का जो नॉब है वो 2 वोल्ट पे है, 2 वोल्ट पर डिवीजन. ओके, आफ्टर एडजस्टिंग द
this signal in a proper shape and proper position, आप ये देख लो कि आपका वोल्टेज पर डिवीजन अभी किधर पे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहे कि ये 2 वोल्ट पे सेट है, ओके, और टाइम डिवीजन आपका 1 मिली सेकंड दिखा रहा है नॉब, ओके। देन आफ्टर सीइंग द पिक्चर, दिस पिक्चर, ओके, सो आवर डिवीजन, ये कितने पे हो रहा है डिवीजन आपका, ये पीक वैल्यू, हमारे पास 3 डिवीजन है, 1 2 एंड 3, ओके। सो 3 into वोल्ट पर डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 2 volts, then it will give you 6 volts. So the value of this or the magnitude of this signal is 6 volt, okay. अभी पिक टू पिक कितना आएगा, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये 6, नीचे वाला भी ये 3 है तो नीचे भी 3 होगा, दैट मीन्स टोटल 6 multiplied with 2 will give you 12 volt. So the peak to peak value of this signal is 12 volt, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इसका स्ट्रेंथ कितना है, 12 volt, ओके, ठीक है। Yes, sir. Now if you want to calculate the time period, then you have to mark this one or this, whatever you love, okay, ठीक है। तो 1 division, 2 division and 3 division. So division of this, on the horizontally if you are measuring is 3, okay, and 1 millisecond is the per division, so obviously 3 is going to be multiplied with the 1 millisecond. Frequency, you know, f equals to 1 by t. If you do 1 by 3 into 10 to the power minus 3, it will give you 333 hertz, 33 hertz, 333 hertz. So the frequency of shown signal is 333 hertz, okay, as simple as that. It's very simple. एक बार आप लैब में करोगे। How did we calculate the DC value? हाँ हाँ बोलो बोलो। Sir, how did we calculate the DC value? This average. Yes, sir. So what is the average value? Sir, how did we calculate this? If we have, How is that? hello, Yes, sir. this actually this peak value, let me rub this whole, we have not calculated the DC value, we have marked that one at 2 volt, okay. See here. See, this is the reference value, okay, ground value जो हम बोल रहे हैं, but हम नॉब को, जो हमारा मतलब एडजस्टमेंट वाला नॉब है, उसको हम यहाँ ना रख के, यहाँ से ना रख के, हम इसको यहाँ से मार्क कर दी, ओके। ये आप डीसी वैल्यू को यहाँ भी ले सकते हो, इसको आप एडजस्ट करके नीचे लेके आ सकते हो, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, ओके, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो अभी इस डीसी वैल्यू कहने का मतलब है, कोई भी सिग्नल का डीसी वैल्यू कहने का मतलब होता है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर से ये भी 0 है, सपोज ये 5 है, तो इस सिग्नल का डीसी वैल्यू क्या है, 0, ओके। हेलो, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. अभी मैं सपोज इस सिग्नल को क्लैंप कर दूं, थोड़ा लेवल बढ़ा दूं इसको, और यहां से वो स्टार्ट हो,
ये 0 है और ये सपोज अभी 2 पे चला गया, ये 2 लेवल पे, तो अब इसका इस सिग्नल का डीसी वैल्यू क्या हो गया? 2 वोल्ट। 2 sir. Got the point? Yes sir. We'll see in the if we have the clamper and clipper circuit, then we'll see also in the lab. Okay, ये कैसे, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मेजरमेंट है, ये हम लोग कैसे लेवल बढ़ा सकते हैं या अप डाउन कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल का डीसी लेवल चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, यूजिंग सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट लाइक कैपेसिटर। ओके, हम क्लिपर क्लैम्पर सर्किट होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं काम, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम अपने हाथ से ही एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अभी देखो कोई भी सिग्नल है, सपोज ये सिग्नल है, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है सिग्नल्स का? व्हाट इज द zero मीनिंग फेज डिफरेंस? 0 है ना, सारा का सारा देखो एक लाइन पे, सिग्नल में कोई फेज डिफरेंस नहीं। फेज डिफरेंस मतलब क्या? एक सिग्नल यहाँ स्टार्ट हो रहा है, दूसरा थोड़ा पहले स्टार्ट हो जा रहा है, अभी ये दोनों में फेज डिफरेंस। ओके, एक सिग्नल ऐसे है, दूसरा सिग्नल ऐसे स्टार्ट हो रहा है, अगेन फेज डिफरेंस। ओके, नाउ इफ यू सी दिस, there is no phase difference between the signals, but suppose we have the phase difference and now we have to calculate the phase difference. Okay, so how we are going to calculate? Obviously we apply on the CRO, then we'll calculate the period. Okay, and using some formula we can calculate the phase difference between these two signals. Okay, ठीक है। अभी एक करके देखेंगे। Sorry, see, these signals are having some phase difference between them. Okay, यहाँ पे कोई phase difference नहीं है ना, ये इसमें कोई phase difference नहीं है, इसमें obviously phase difference. Okay, now how you are going to calculate the phase difference? This is called the phase difference. Okay, take 1 second. Let me choose. Okay, so जो दोनों जो पिक है, ओके, कोई भी सिग्नल है ना, आप एक स्मार्टली क्या करोगे, सपोज ये सिग्नल है सब, तो हम क्या करेंगे, दोनों पिक को मार्क कर लेंगे, ये दोनों बीच का जो टाइम है ना, यही सिग्नल का फेज डिफरेंस होता है। ओके, या आप लोअर ले सकते हो, ये और ये कहाँ गया, ये सिग्नल का लोअर है, ये सिग्नल कहीं पे। ओके, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज डेल टी। टी क्या होगा? टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड कैसे? पूरा एक कंप्लीट साइकिल, कोई भी सिग्नल का पूरा एक कंप्लीट साइकिल। ओके, ये फिर से कहां से अपने आप को रिपीट कर रहा है, उतने तक उसका टाइम पीरियड सिग्नल का। ओके, so this is D, T, capital T, and phase difference is represented by del T. Okay, यहाँ से आप पहले यहाँ पे भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये चीजें? ऑब्वियसली टाइम का सेटिंग आप देखोगे कहाँ पे है। ओके, सेम प्रोसीजर वही है, यहाँ पे डिग्री में उसको कन्वर्ट करने का है, रेडियन में कन्वर्ट करने का है, तो आप ऐसा करो। ओके, फॉर्मूला लिख के जस्ट मल्टीप्लाई करने का है। ओके, डेल टी बाई टी इंटू 360 मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे वो रेडियन में होता है। ओके, ठीक है, represented in the theta if del t by t
you do into multiplied with 360 degree. ये देखो टाइम में है ना ये डिफरेंस. Now if you want to calculate in the degree, क्योंकि अगर आप फेज को एंगल में दिखाते हो तो हमारे लिए समझने के लिए ज्यादा आसान होता है. ओके, फॉर द कैलकुलेटिंग मैथमेटिकली इफ यू वांट टू अप्लाई सम फॉर्मूला, देन हमारे पास अगर वो चीजें एंगल में आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है. ओके, सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द डिग्री एंड रेडियंस. ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग में आपको ये चीज सीखने का है कि कोई भी चीज हमारे पास एक चीज इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज का, नाउ ये इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लेके जाएं सो दैट हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके, मैथमेटिकली कहीं पे डाल सके और उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व कर सके. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन जो आपके पास आएगा स्क्रीन पे या कहीं से आप मेजर किए हो वो टाइम फेज में आएगा. Sometime you have to convert into the frequency. We have the tool for doing that. Sometime आपको रेडियन में कन्वर्ट करके देखना है, sometime आपको डिग्री में देखने का रहेगा. ओके, so I think this is it for the model 1. Any doubt or anything has been left in the model 1? Can anyone say to me after seeing the syllabus? सर एक बार फेज डिफरेंस का सर एक क्वेश्चन करा देते हैं ना. इसका फेज डिफरेंस वाला का. फेज डिफरेंस का हाँ सर. ठीक है, अभी कोई हो जाएगा. पहले ये बताओ कि कोई सिलेबस में लेफ्ट है, कुछ बच रहा है? सिलेबस थोड़ा देखो फटाफट. बोलो. नो सर, फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं बचा. नो सर. कुछ नहीं बच रहा ना. फर्स्ट मॉड्यूल. Now I'll start the module 2nd, and in between mark your attendance everybody. I am activating the link. Please mark your attendance for today. In the electrical Google Classroom, I have uploaded some books and model 1 PPT. Please go through that because I am going to take test. That will be the quiz test in the live. Okay. So please go through that, everybody. I will upload today to the CSC Google Classroom also right now after finishing this class. So please go through that and please revise yourself. There will be a very, very simple question just to, there is no such kind of test or this is only for your awareness that you have aware with this module or not. So in the next class, I'll take the quiz. Okay. That will be, I think, for the 20 minutes.
or 10 minutes. I will see that. सर अटेंडेंस में सर डेट नहीं ले रहा सर। तुम लोग क्या कर देते हो बाबू, कुछ ना कुछ करते हो, सबका लेता है, सब बहुत लोग सब सबमिट कर रहा है, सिर्फ तुम ही को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कैसे? केयरफुली चेक करो ना, राइट टाइम डालो। एक 11/2021 है, वो ऑटोमेटिक डेट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, सर मेरा नहीं सर, 2 बार ट्राई किया। क्या करें बोलो, तुम एब्सेंट हो जाओगे बाबू। रिफ्रेश करके जल्दी से भरो। आई एम वेटिंग फॉर दैट। Okay, so I am going to start the second module. We don't have much time. Okay, so we'll go. So basically in the second module, what we have, if we see, we'll go through the electron dynamics, right? Basically, the motto of the second module is to understand the electronics components or the active components, or basically the semiconductor material properties, then the characteristics of the semiconductor material. Using this semiconductor material, what we are making, okay, that means, 1 second, I have to close the attendance. Wait. Okay, so and then that means after we have made some devices using semiconductor, then obviously what is the characteristics of that devices? Okay, means what? When we are applying some electrical potential, how these devices are behaving, और उसका फिर एप्लीकेशन जब बन गया तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में क्या है, आपका रेक्टिफायर है। ओके, जब हम पहले स्टार्टिंग में पहला जो डिवाइस बनाएंगे या जो डिवाइस को हम देखेंगे, ओके, वो डिवाइस को यूज करके हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन में रेक्टिफायर को देखेंगे। ओके, उसके बाद
डिफरेंट डिवाइसेस का ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज कि जब आप जो बेसिक चीज है इस मॉडल का वो हम डिफरेंट जो हमारा डिवाइसेस बनेगा सिमिलर वर्क के लिए, ओके। तो उसका जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकली विल हैव टू सी एंड विल हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। देन यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चन, ओके। इट्स वेरी सिंपल। कोई भी मॉडल को आपको सीखने का है या कोई भी टॉपिक सीखने का है, देन उस चीज को पूरा ओपन कर दो और ऊपर से नीचे तक उसको ऑब्जर्व करो, ओके। दैट मीन्स जैसे इस मॉडल का बात करें तो फर्स्ट जो हमारा फिनिश हुआ उस मॉडल में हम क्या क्या सीखे, जो बेसिक कंपोनेंट है ना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ देखा है ना, जैसे मल्टीमीटर हो गया, CRO हो गया, ये सब क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके पहले क्या कुछ आईसीज देखे हमने, है ना, उसका क्या आईसी क्या होता है, क्यों बना है, एडवांटेजेस है ना ओवर द अदर। देन उसके बिफोर में हम लोग क्या देखे, सिंपल है ना, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ना, कितने टाइप्स का होते हैं, लाइक दैट वी हैव गॉन। अभी आप जब पलट के देखोगे तो लगेगा कि मॉडल तो कंप्लीट है, ओके। जस्ट यू हैव टू जस्ट रिवाइज वंस एंड एवरीथिंग विल बी डन, okay. So let us start with this model. So electron तो सबको पता होगा, है ना। we have starting from very zero thing, okay. ये सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ से, ये मॉडल के लिए यहाँ से स्टार्ट करने का मेरा एक ही रीजन है कि आप चीजों को रिवाइज करो, ओके। 12th में जो पढ़े वो थोड़ा वो लेके आओ अपने दिमाग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सब कुछ सबको पता है, हाँ। तो बेसिकली एटम इज नॉन, एटम क्या है, कौन बोलेगा, व्हाट इज एटम? Sir, a centrally situated nuclei with positive charge and electrons revolving around it. Okay. So obviously we know that, है ना, it is having some 3 primary particles, photons, neutrons and electrons. सबको पता है एक एटम में ये चीजों है, ये तीनों है। देन इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जानेंगे, है ना। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी सबको पता है। सब एटॉमिक पार्टिकल इसको बोलते हैं, सबको पता है, हाँ? It can be either free, that is not attached to any atom, or bonded to the nucleus of an atom. ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? या तो ये फ्री होता है, नहीं तो ये किसी न्यूक्लियस के एटम के साथ बॉन्डेड होता है। आप लोग पढ़े हो गया आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। So many, there are 3 types of bond I think exist, okay. ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो आप पिक्चर देख रहे हो ये कार्बन का आपका अरेंजमेंट है, ओके, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है। जो आपको ये दिखा रहा है कि एक स्फेरिकल, ऐसे राउंड स्फेरिकल शेप का ना वेरियस रेडियाई है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स, हर रेडियाई में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। जो कि हायर एनर्जी जो कंटेन करता है, जो लार्जर जो आपका सेल है वो हायर एनर्जी कंटेन करता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन। ये सारा कॉन्सेप्ट सबको पता है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका मास है, जो चार्ज है, वो याद रखने का है, ठीक है एवरीबॉडी, एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा डोनेट किया गया, इसको खोजा कौन था, है ना, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, नहीं तो ऐसे, ठीक है, ये नोटेशन हो गया। देन मास, देन चार्ज, these 2 things are important
while calculating some numerical value associated with the electrons. Okay, so sometime कहीं पे Q मल्टीप्लाई रहेगा तो आपको तो वैल्यू रखने का है ना, कहीं पे M आ रहा है तो कहीं तो आपको वैल्यू रखने का होगा, तो ये याद रखने का है, ठीक है। 1.60217 यहाँ तक ही याद रखो, आगे तो डिजिट रिपीट है, इनटू 10 to the power -19 कूलम। ओके, ठीक है। Now this is orbit, you know everybody, yes, है ना, ये सब तो पढ़े होगे। Yes, So sir. orbit is represented by some symbols, okay, K, L, M, N, etc, और numbers 1 2 3 4, है ना, ठीक है। तो जो आपका पॉजिटिव किसी एटम का कोई भी आप न्यूक्लियस को आप देखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, उसके अराउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करता है। तो नाउ दीज हैज बीन नेम्ड विथ सम symbol, alphabetically, okay, और नंबर यू कैन से। तो फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के सेल, सेकेंड को एल, एम, एन, इस तरह से आप नंबर भी बोल सकते हो, है ना, 1 2 3 4, ओके, ठीक है। ये थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं सो दैट कि जब मैं आगे बोलूं तो आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सबको तो पता ही होगा, बट आप देखो कि कोई भी एक एनर्जी लेवल पे और ऑर्बिट पे, कोई भी एक ऑर्बिट पे या सेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपने हायर लेवल को जाना चाहता है या जा रहा है या जाने का कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच सेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओके, ओके, है ना। अगर लोअर एनर्जी लेवल से कोई हायर एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सो दैट कि ये यहाँ पे मूव कर सके। मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जाने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ओके, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे है और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाह रहा है या आ रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी को रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, ओके, तभी ये यहाँ रह सकता है, अदरवाइज ये यहाँ नहीं रह सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Because every energy level have different energy, every orbits have different energy levels, okay. So the electron from K cell will have